kids, welcome to today's maths class and today we'll do fraction. Fraction we have done earlier. Fraction is what? Fraction is the part of the whole. जब किसी एक पूरी चीज़ को equal part में divide किया जाता है, so each part is called a fraction. First we'll start with the warm up activity. Can you fill in the caterpillar's stomach with the equivalent fraction? Make sure it is only the equivalent fraction, else his stomach might get upset. So आपको equivalent fraction fill करना है. Like here, 1/3, 11/33, or you can write 6/27. That is also 1/3. तो इस तरीके से आपको equivalent fraction लिखने हैं. Clear? Next is fraction. A fraction is a part of whole. Sometimes we need to divide a thing into same equal part, then each part is called as fraction. Similarly, 18 balls are to be divided among 3 boys. 18 balls उसको 3 boys में divide करना equally. So 18 balls will be divided into 3 equal part. That is 1/3. 18 into 1/3. That is 6. Means 6 के part होंगे. Clear? 3 equal part. Some more examples of the fractions. So here you can see total 6 equal part. Out of that 3 are shaded, that will represent 3/6. 6 equal part, out of that 1 is shaded, that will represent 1/6, and this will represent 2/3. Next is numerator and denominator of a fraction. So a fraction is written by two numerals, one over the line and one is below the line. जो line के ऊपर होगा that is numerator, and the number which is below the line that is known as denominator of the fraction. For example, numerator show, numerator क्या show करता है? The number of parts, and denominator show the total number of equal part. न्यूमरेटर शो करेगा टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में से हम कितने को कंसीडर कर रहे हैं, एंड डिनोमिनेटर शो करेगा टोटल कितने इक्वल पार्ट है. द फ्रैक्शन 5/12 मीन्स 5 out of 12. 5 is numerator and 12 is denominator. Next is fraction, a collection. A part of a collection of a thing is a fraction of the whole collection. There are 12 chocolates. They are divided into 4 equal parts. Total 12 chocolates है, उनको 4 equal part में divide करना. Means 1/4 of 12. That is equals to 3. 1/4 of the 12. That is equals to 3. Clear? Example लेते हैं. Find 3/4 of 20 balls. 3/4 of 20 balls. 20 ball का collection है. So 3/4 into 20. 3/4 into 20. 4 5s are 20. 5 3s are 15. So total 15 balls हो जाएंगी. Next is practice time 3.1. Write the fraction represented by the shaded part of each of the following figures. So first we'll count how many equal parts. 1 2 3 4 5 6 7 8. Out of the 3 are shaded. तो 3/8 हो जाएगा. जो shaded हो जाएगा that will represent 3/8. Clear? Next is shade the figure for the fraction as shown below. So हमें fraction जो दे रखा है that is 5/8. तो total 8 equal part, out of that we have to shade any 5 part. That will represent 5/8. Clear? So given fraction के according आपको shade करना है. Next, write numerator and denominator of the following. 3 is numerator and 7 is denominator. Next, write the fraction whose numerator and denominator are given below. Numerator is 5 plus 3, that means 8, and denominator means 5 minus 2, that means 3. Clear? ये हो जाएगा 8/3. Next, find 1/3 of 15. So 1/3 of 15, that is equals to 5. Clear? Vyom has 30 packets of chips. He distributes 4/5 of them in his friend. How many packets chips are left with him? So total 30 packets से उसका 4/5 उसने distribute किया. Means कितना कर दिया है? 20 distribute कर दिया. Means how many left? 30 minus 24. 6 packets. Clear? Next, equivalent fraction. Observe the following figure. Here it shows 2/4, 4/8, 6/12, 8/16. So you can see the same part of the circle is shaded. Same circle है, अलग अलग parts में divide किया है, उसमें से अलग अलग shaded parts को लिया है. Fraction are different because 2/4 is same as 4/8, is same as 6/12, is same as 8/16. So to get the equivalent fraction to the given fraction,
will multiply or divide the numerator and denominator of a fraction by the same non-zero number. So equivalent fraction के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे. एग्जाम्पल लेते हैं. राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग 3/4. सो 3/4 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कर रहे हैं. फर्स्ट हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, देन 3, देन 4, देन 5 एंड देन 6. So we'll get 6/8, 9/12, 12/16, 15/20, 18/24. All these are equivalent fraction. So practice all the examples. Next, reducing to the lowest form. अब lowest form में हम कैसे reduce करेंगे वो हम सीखेंगे. To reduce the given fraction to its lowest form, we'll divide the numerator and denominator by their HCF. HCF से divide करेंगे numerator और denominator को. HCF means highest common factor. Now reduce the following fraction to their lowest form. 15/30. अगर 15 और 30 का HCF फाइंड आउट करें that is 15. So हम डिवाइड करेंगे 15 1s are 15 and 15 2s are 30. So 1/2 is our answer. That is the lowest form of the given fraction. Clear? Next, practice time 3.2. Write 5 equivalent fraction of the following fraction. 5/8. So 5/8 into 2 into 2, 1, ये हो जाएगा 5/8 into 3 into 3, then 5/8 into 4 into 4, 32, 5/8. सो इस तरीके से 6 करेंगे तो टोटल हमें 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएंगे. क्लियर? नेक्स्ट, राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 8/15 विद द न्यूमरेटर 24. 8/15 न्यूमरेट फॉर मेकिंग न्यूमरेटर 24 विल मल्टीप्लाई 8 with 3. That means equivalent fraction है, that means we have to multiply denominator with 3 also. So that is 24/45. Next is write equivalent fraction to 30/45 with the numerator 6. Now we have to make the numerator 6. So that means we have to divide it by 5. That means we divide the denominator by 5 also. 6/9. Clear? Next, which of the following pairs are equivalent? So we have to check whether the given fractions are equivalent or not. So there is one way, that is cross multiplication method. We have done it earlier. So हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. अगर ये इक्वल है दैट मीन्स ये इक्वल फ्रैक्शन है. 48 into 5 करेंगे, then that means they are equivalent. Clear? Next, fill in the blocks. 18/40 equals to -120. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स 40 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 120 हो गया. मीन्स 18 को भी हमें 3 से करना है. 54/120. क्लियर? नेक्स्ट, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म. लोएस्ट फॉर्म मीन्स विल डिवाइड इट बाय देयर HCF. सो HCF हो जाएगा 15. 15 1s are 15, 15 3s are 45, 1/3. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन होते हैं. कौन कौन से वो हम पढ़ेंगे. लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो. सो 2/17, 3/17, 8/17, 9/17, these are like fraction because they all are having the same denominator. Next, unlike fraction. फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा दे आर अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक 23/13, 13/15, 18/13, 9/19. All are having different denominators, so unlike fraction. Next, proper fraction. When the numerator of the fraction is less than the denominator. प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा, जब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. लाइक 2/5, 8/13, ये सारे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू द डिनोमिनेटर, या तो उससे ज़्यादा हो या फिर उसके इक्वल हो. लाइक 17/13, न्यूमरेटर 17 है, डिनोमिनेटर 13 है. 8/17, 13/13 इक्वल है, तो ये क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. वैल्यू ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन द 1. जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू 1 से कम होगी. वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन
या तो इक्वल होगी 1 के या उससे ज़्यादा होगी. नेक्स्ट इज मिक्स फ्रैक्शन. व्हेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब होल और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो उसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं. लाइक 3 1/4, तो 3 क्या हो गया होल पार्ट एंड 1/4 दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. सो दैट इज अ मिक्स फ्रैक्शन. 2 1/8, 9 1/6, 4 2/5, all these are mixed fraction. Next, conversion of improper fraction to mixed fraction. Improper को mix में कैसे convert करेंगे? First we'll divide the numerator by denominator. Quotient gives the whole number part, while the remainder divide by the denominator give the fraction part. Reduce the fraction to its lowest form. Example समझते हैं, easily समझ में आएगा. We have to convert 17/5 and 120/7 into mixed fraction. तो हम 17/5 का एग्जाम्पल लेते हैं. 17 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे. सो 5 3 15, रिमाइंडर 2 है, तो 3 जो हमारा क्वोशिएंट है वो हमारा होल पार्ट बन जाएगा, रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा एंड डिवाइजर हमारा डिनोमिनेटर. मीन्स 3 2/5 इज आवर आंसर. क्लियर. नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना इज वेरी इजी. हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को होल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो न्यूमरेटर है उसमें ऐड कर देंगे एंड डिनोमिनेटर को नीचे लिख देंगे. लाइक कन्वर्ट 5 3/7 इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर 7 को होल पार्ट यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 7 35, 3 जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देंगे एंड जो डिनोमिनेटर है वो नीचे लिख देंगे. सो दैट इज इक्वल्स टू 38/7. क्लियर. नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन. रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा. When we change the place of numerator and denominator, means numerator denominator बन जाएगा and denominator numerator, that is the reciprocal. Like reciprocal of 9/13, that is 13/9. Reciprocal of 17/8, that is 8/17. Reciprocal of proper fraction का reciprocal जो होगा वो improper fraction होगा. Next is practice time 3.3. Write next 4 like fraction to the following fraction. 7/13, 6/13, 5/13, 4/13, because like तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. 3/13, 2/13. Clear? Next, which of the following set of fractions are like? Like means denominator same होना चाहिए. So B, all these are like fraction because denominator are same. Choose the proper and improper fraction from the following fraction. So 13/17 means numerator is less than denominator, so it is प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इस तरीके से आप चेक करोगे वेदर इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर. नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन. 13/8, तो 13 को हम 8 से डिवाइड करेंगे. 8 1 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, सो दैट इज इक्वल्स टू 1. 5/8, दैट इज द मिक्स फ्रैक्शन. क्लियर. नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 5 3 15 and 2 17, 17/5. Next, find the reciprocal of the following fraction. 5/7 reciprocal हो जाएगा 7/5. Next, fill in the blanks. The numerator of the unit fraction is, numerator unit fraction means 1, जिसका भी numerator 1 होगा तो क्या हो जाएगा 1. Next, write T for true and F for false. Denominator of unit fraction is 1. No, numerator 1 होता है, so that is false. Write F. Clear? नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन. अब हम सीखेंगे कि लाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे. कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन. सो हियर यू कैन सी 1/7, 2/7, 3/7, 4/7. लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है. सो डिनोमिनेटर सेम होगा तो विल कंपेयर द न्यूमरेटर. जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा दैट विल बी ग्रेटर. सो इट इज क्लियर. 4/7 सबसे बड़ा होगा, देन 3/7, देन 2/7 एंड देन 1/7. सो ऑल रेक्टेंगल्स आर डिवाइडेड इनटू 7 इक्वल पार्ट. But the shaded part is 4/7 fraction is more than the other part. अगर आप इसमें भी देखें तो 4/7 के सबसे ज़्यादा shaded है तो वो greater हो जाएगा. Fraction having greater numerator is greater than the other if the denominator of the fraction are same. Clear? Next, comparison of fractions whose numerator are equal. अगर numerator equal है तो हम कैसे compare करेंगे. जिसका भी denominator सबसे कम होगा वो greater होगा. Like 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. So it is clear that the figure shaded part is 1/2 is more shaded part of 1/4. तो shaded part of 1/4 is more than the shaded part of 1/8. तो इस तरीके से हम compare करते हैं. So 1/2 सबसे बड़ा हो जाएगा, then 1/4, 1/8, 1/16. The fraction having the denominator is smaller is greater than that of the fraction of numerator of the fraction are same. Clear?
एग्जाम्पल लेते हैं, कंपेयर 17/23 एंड 13/23. सो डिनोमिनेटर सेम, लाइक फ्रैक्शन है, तो कंपेयर द न्यूमरेटर, जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो ग्रेटर होगा. सो 17 इज ग्रेटर देन 13, तो फ्रैक्शन 17/23 विल बी ग्रेटर देन 13/23. क्लियर. नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन. अब अनलाइक फ्रैक्शन को हम लाइक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रोसीजर समझते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझना है. टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन. जो भी अनलाइक फ्रैक्शन के जितने भी डिनोमिनेटर उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. मल्टीप्लाई ईच फ्रैक्शन बाय द सूटेबल नंबर टू मेक द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल टू एलसीएम. हमें क्या करना है, सबका एलसीएम सेम करना है. तो ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम हो जाए वो उससे मल्टीप्लाई करना. नाउ कंपेयर देयर न्यूमरेटर. फिर तो जैसे हम लाइक फ्रैक्शन का करते हैं उसी तरीके से होगा. एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा. और कंपेयर 5/18 एंड 17/45. नाउ डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम 18 और 45 का एलसीएम लेंगे. एलसीएम हमारा आ गया 90. नाउ फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है, 5/18. डिनोमिनेटर 18 है तो हम क्या करेंगे, 90 को 18 से डिवाइड करेंगे. सो विल गेट 5. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, दैट नंबर इज 5, जिसको हम 18 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 90 हो जाए. तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25/90. यहाँ पे हम करेंगे 90 को डिवाइड करेंगे 45 से 2, तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 34/90. नाउ डिनोमिनेटर सेम, तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा दैट विल बी ग्रेटर. सो 25/90 विल बी लेस देन 34/90. क्लियर. नेक्स्ट, प्रैक्टिस टाइम 3.4. Fill in the boxes with greater than, less than and equal to. 5/18 and 7/18. Like fraction है, compare the numerator. 5 is less than 7, so 5/18 will be less than 7/18. Clear? So this way you can compare. Next question. Compare the following pairs of fraction. 5/15 and 12/13. So here you can use the cross multiplication method. 12/13. तो आप क्या करोगे, फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे एंड फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेकंड के न्यूमरेटर से. सो दैट इज इक्वल्स टू 65 एंड दिस इज इक्वल्स टू 180. सो ये ग्रेटर है, दैट मीन्स 12/13 विल बी ग्रेटर देन 5/15. तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शन. तो सेम वे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज़ करके आप कंपेयर कर सकते हैं विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर. लाइक फ्रैक्शन है, असेंडिंग ऑर्डर विल कंपेयर द न्यूमरेटर. क्लियर. असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्मॉल टू बिग. तो सबसे छोटा जिसका भी न्यूमरेटर होगा वो स्मॉलर होगा. 2/14, देन 5/14, देन 6/14, देन 7/14 and 9/14. Clear? That is the ascending order. Next, arrange the following fraction in descending order. Next is descending, means decreasing. Start from the greatest. So सबसे बड़ा हो जाएगा 13/11, then 8/11, then 6/11, after that 5/11 and the smallest is 3/11. Clear? Next, addition and subtraction of fraction. सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शन का सीखेंगे. लाइक फ्रैक्शन इज वेरी इजी. सिंपली वी हैव टू ऐड द न्यूमरेटर एंड राइट द कॉमन डिनोमिनेटर. एग्जाम्पल लेते हैं. ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस 5/16 एंड 3/16. डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे. 5 + 3/16. सो दैट इज इक्वल्स टू 8/16. लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे 1/2. क्लियर. नेक्स्ट, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले हमें उसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे. एग्जाम्पल से लेते हैं. ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शन. 1 3/8 + 3 7/12 + 4 3/16. मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले हम वो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. सो ये हो जाएगा 11/8 43/12 67/16. नाउ डिनोमिनेटर नाम सेम. सबसे पहले 8 12 एंड 16 का एलसीएम लेंगे. एलसीएम दैट इज इक्वल्स टू 48. क्लियर. अब हम एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करेंगे एंड न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और कॉमन डिनोमिनेटर को नीचे लिखेंगे. सो दैट इज इक्वल्स टू, बिकॉज 48 को 8 से डिवाइड करेंगे 6, तो 11 × 6 प्लस 12
से डिवाइड करेंगे 48 को, तो दैट इज इक्वल्स टू 4, 43 इंटू 4 एंड 48 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज 3, तो 67 इंटू 3 ऐड कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 4, 39 अपॉन 48. दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब भी आपको इम्प्रॉपर गिवन है आप उसको मिक्स में चेंज करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 9, 7 अपॉन 48. ऑल्टरनेटिव मेथड आपको दे रखा है, आप इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले जो भी होल पार्ट है उनको अलग से ऐड किया है और जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको अलग से. तो फ्रैक्शन पार्ट को हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जिस तरीके से ऐड करते हैं, जो भी आएगा उसमें हम होल पार्ट को ऐड कर देंगे. लाइक यहाँ पे 8 और इसको टोटल सॉल्व करेंगे 55 अपॉन 48. अगेन हम एलसीएम लेंगे 48 और इसको ऐड करेंगे 9, 7 अपॉन 48. क्लियर? सो यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड. नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन, अगर लाइक फ्रैक्शन है तो हम डिफरेंस निकालेंगे न्यूमरेटर का और कॉमन डिनोमिनेटर को नीचे लिखेंगे. लाइक सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन, 7 अपॉन 18 माइनस 5 अपॉन 18. सो 7 माइनस 5 अपॉन 18 दैट इज इक्वल्स 2 अपॉन 18. लोएस्ट में चेंज करेंगे 1/9. क्लियर? नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन. सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन के लिए. सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सेम करेंगे बाय टेकिंग द एलसीएम. जब न्यूमरेटर सेम हो जाएगा तो सिंपली डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो सिंपली न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड कॉमन डिनोमिनेटर को नीचे लिख देंगे. लाइक 5 अपॉन 13 माइनस 7 अपॉन 26. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 13 और 26 का एलसीएम लेंगे, दैट इज 26 एंड डिनोमिनेटर सेम करेंगे. 5 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 1, ये हो जाएगा 10 माइनस 7 अपॉन 26, 3 अपॉन 26. दैट इज आवर आंसर. क्लियर? नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम 3.5. एड द फॉलोइंग 6/17 प्लस 5/17. डिनोमिनेटर सेम है, सिंपली हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे. 6 प्लस 5 11 अपॉन 17. एड द फॉलोइंग फ्रैक्शन 1/6 प्लस 5/12. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे. 6 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 12. 6 2 are 12, तो 1 इंटू 2 प्लस 5. सो 5 प्लस 2 7/12. दैट इज आवर आंसर. क्लियर? नेक्स्ट एड द फॉलोइंग फ्रैक्शन. सो मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. 3 1 3, 4/3 प्लस 15 2 30 एंड 33 अपॉन 15. एलसीएम क्या आ जाएगा 15. 4 इंटू 5 प्लस 33, 20 प्लस 33, 53 अपॉन 15. अगेन दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, मिक्स में करेंगे. 45, 8 अपॉन 15. क्लियर? नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. डिनोमिनेटर सेम है, 7 माइनस 4 हम न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3/8. क्लियर? नाउ नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन. 7/9 माइनस 5/12. एलसीएम ले लेंगे हम 9 और 12 का. क्लियर? 36 आ जाएगा एलसीएम. डिनोमिनेटर सेम कर देंगे एंड उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे जैसे हम करते हैं. नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. 5 3 are 15 एंड 2 17/3 माइनस 7 3 are 21 एंड 3 24/7. 7 and 3 का एलसीएम लेंगे, दैट इज 21. सो 17 इंटू 7 माइनस 24 इंटू 3. इसको सॉल्व करेंगे एंड दैट विल बी आवर आंसर. क्लियर? नेक्स्ट सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन. सो सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7/19 प्लस 8/19 माइनस 3/19. सो डिनोमिनेटर सेम है 19. 7 प्लस 8 माइनस 3. 7 plus 8 that is 15. 15 minus 3 that is 12. 12 upon 19. That is our answer. Next, simplify the following fraction. Same way, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले mixed fraction है, change it to improper. If denominator are not same, change the denominator by taking the LCM. Denominator को same करेंगे, change them to like fraction और फिर इसी तरीके से हम add और subtract करेंगे. Clear? Next, multiplication of the fraction. Let a upon b and c upon d are two fraction. अगर दो fraction है तो किस तरीके से multiply करेंगे, multiply the numerator upon the product of numerator upon the product of denominator, means a into c upon b into d.
एग्जाम्पल लेते हैं, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन 5/18 into 9/28. So simply we'll find out the product of numerator upon the product of denominator, meaning 5 into 9/18 into 25. 5 5s are 25, 9 2s are 18. So that is equals to 1/10. Clear? Next, practice time 3.6. Multiply the following 9 to 11 into 33 upon 18. So that is equals to 9 into 33 upon 11 into 18. So 9 was a 9, 9 2s are 18, 11 was a 11, 11 3s are 33. 3/2. 3/2 improper fraction है, so we'll change into mixed fraction 1, 1/2. Clear? Next, multiply the following. Again mixed fraction है, पहले इसको change करेंगे improper में. 6 5s are 30, 31 upon 5 into 9 upon 32. So 31 into 9 कर देंगे, 32 into 5, 5 2s are 10, 3 5s are 15 and 16. Improper fraction है, इसको हम mix में change करेंगे. Clear? Next, division of the fraction. Let a upon b and c upon d are two fractions. So a upon b divided by c upon d किसके equal होगा? a upon b into reciprocal of the, जो उसके बाद है, जो हमारा साइन है उसके बाद जो फ्रैक्शन है उसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, मीन्स d अपॉन c, यानी a इंटू डी अपॉन बी अपॉन सी. बिकॉज डिविजन क्या है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. एग्जाम्पल समझते हैं. डिवाइड द फॉलोइंग 10/21 बाय 15/28. 10/21 डिवाइड बाय 15/28, तो 10/21 इंटू रेसिप्रोकेट हो जाएगा 15/28 क्या हो जाएगा? 28/15. क्लियर? सो दैट इज इक्वल्स टू 8/9. Next is practice time 3.7. Divide the following 34/50. डिवाइड करना है तो हम क्या कर देंगे? इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे. 75/51. सो पहले हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे 5 से. 5 10s are 50, 5 1s are 5, 15. 18/51. That is our answer. Clear? Next, divide the following same way. उसी तरीके से करेंगे. मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे और जिस तरीके से हम डिवाइड करते हैं रेसिप्रोकेट करके उसी तरीके से करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, वर्ड प्रॉब्लम्स. Sanju bought 3 1/5 kg of sugar, 1 1/4 kg of dal and 6 1/4 kg of wheat flours. Find total weight of all. So हमें क्या करना है? टोटल वेट शुगर, दाल और व्हीट का मिला के निकलना है. तो सबसे पहले मिक्स को हम क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. वेट ऑफ शुगर कितना हो जाएगा? अगर हम इसको चेंज करेंगे 5 3s are 15 प्लस 116/5 एंड ये हो जाएगा 4 1s are 4 एंड 5 5/4, 6 4s are 24 एंड 25/4. तो हम इसको ऐड कर देंगे. क्लियर? नाउ डिनोमिनेटर क्या है? 5 4 और 4. डिनोमिनेटर सेम करना है, सो 5 4 का हम क्या करेंगे? एलसीएम, दैट इज 20. और फिर हम जिस तरीके से सॉल्व करते हैं उसी तरीके से करेंगे. तो 107/10 दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसको मिक्स में चेंज करेंगे 10 7/10 kg. क्लियर? सो प्रैक्टिस ऑल द एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट, प्रैक्टिस टाइम 3.8. Mukesh bought 3 1/4 kg of potatoes, 2 1/5 kg of onion and 1 1/5 kg of tomatoes. Find the total weight. So सबसे पहले हम इसे चेंज कर लेते हैं. 4 3s are 12 and 1 13/4. ऐड कर देंगे. टोटल वेट मीन्स प्लस 5 2s are 10 and 1 11/5 प्लस 5 1s are 5 and 1 6/5 kg. क्लियर? एलसीएम लेंगे 20. सो 13 into 5 प्लस 11 into 4 प्लस 6 into 4. ऐड करेंगे 65 प्लस 44 प्लस 24/20. ऐड कर देंगे 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 13, 3 1 कैरी ओवर, 4 to 6, 6 6 12 and 1 13. अगेन ये क्या है? दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो हम इसको मिक्स में चेंज करेंगे
25 100, 26 120, 120, तो 13 बच जाएगा, 1320 kg। क्लियर? सो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट इज रिविजन एक्सरसाइज। सो रिविजन एक्सरसाइज अगेन रिलेटेड टू व्हाट वी हैव रीड इन चैप्टर, जो भी हमने प्रैक्टिस किया है, जो भी कॉन्सेप्ट समझे उसकी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। डू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4/15 is written as 4/15 यानी 4/15. So B is the correct option here. Next, mental maths. Again, mental maths के भी क्वेश्चन जो है जो हमने चैप्टर में पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है। The number below the horizontal line is called, लाइन के नीचे वाला क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर, DENOMINATOR। क्लियर? सो ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया है। नाउ टू प्रैक्टिस इट।